Hello students, again myself Deepan Parikh. Now be ready for study. Chapter number 8, How do organisms reproduce? Students, in previous video we discussed reproduction in human beings. In this concept we discuss male reproductive system, next is female reproductive system. Now we are going to learn what happens when the egg is not fertilized. Okay, so when the sperm cell, or we can say the male germ cell, not able to fuse with the female germ cells, means with the egg, means their fusions not possible. In that condition what happen? So here we can discuss this thing. If the egg is not fertilized, it lives for about 1 day. ओके, जब वो स्पर्म सेल फ्यूज नहीं होता है एग सेल के साथ तो उनका फ्यूज़न नहीं होगा, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी. तो इन दैट कंडीशन एग क्या होगा? फर्टिलाइज नहीं होगा और वो 1 दिन तक रहता है. इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day. एंड सिंस द ओवरी रिलीजेस 1 egg every month, the uterus also prepares itself every month to receive a fertilized egg. ओके, हर मंथ में एक एग रिलीज होता है ओवरी से. ओके, देन व्हाट हैपन? यूटेरस इन एडवांस प्रिपेयर इटसेल्फ. हर मंथ वो यूटेरस प्रिपेयर हो जाता है टू रिसीव द फर्टिलाइज एग. ओके, दस इट्स लिनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी. जो उसकी जो लिनिंग साइड है इंटरनल, वो थिक एंड स्पॉन्जी होती है. दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशंस हैड टेकन प्लेस. क्यों सॉफ्ट होती है, क्यों स्पॉन्जी होती है? क्योंकि उसके अंदर जो एम्ब्रियो अगर फर्टिलाइज फ्यूज़न के बाद जो फर्टिलाइज एग है वो अंदर आता है तो उसको नरिश करने के लिए. ओके, इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस. नाउ हाउएवर दिस लिनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर. क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है एग का, सो दिस लिनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर. तो उसकी ज़रूरत नहीं है. सो द लिनिंग स्लोली ब्रेक्स and comes out through the vagina as blood and mucus. Okay, this cycle takes place roughly every month and is known as menstruation. Okay, generally this process happen, okay, in girls or we can say in female. So ये जो साइकिल होती है, ओके, एवरी मंथ फीमेल के अंदर होती है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन. ओके, इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days. टू कंप्लीट दिस प्रोसेस इट टेक्स 2 to 8 days. ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज reproductive health. Students, here as we have seen, the process of sexual maturation is gradual and takes place while general body growth is still going on. Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual acts or for having and bringing up children. How do we decide if the body or the mind is ready for this major responsibility? So now we can discuss here. All of us are under many different kinds of pressures about these issues. There can be pressure from our friends for participating in many activities, whether we really want to or not. There can be pressure from families to get married and start having children. Okay, so different types of pressures. There can be pressure from government agencies to avoid having children. In this situation, making choices can become very difficult. We must also consider the possible health consequences of having sex. We have discussed in class 9 that diseases can be transmitted from person to person in a variety of ways. So here we can discuss this point also related to health. Since the sexual act is a very
intimate connections of bodies. It is not surprising that many diseases can be sexually transmitted, जिसके कारण sexual disease होती है and transmit भी होती है. This include bacterial infection such as gonorrhea, it is the name of disease, and syphilis. Okay, gonorrhea and syphilis bacterial infection से होता है, and viral infection such as warts and HIV, AIDS. Okay, is it possible to prevent the transmission of such disease during the sexual act? So we can discuss this point. Using a covering called a condom for the penis during sex helps to prevent transmission of many of these infections to some extent. जो कॉन्डम होता है जिसको पेनिस पे पहना जाता है, जिसके कारण ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज का खतरा कम हो जाता है. ओके, दिस इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट. The sexual act always has the potential to lead to pregnancy. Yes, the sexual act always, okay, has to potential to lead to pregnancy. Pregnancy will make major demands on the body and the mind of the woman, and if she is not ready for it, her health will be adversely affected. Okay, अगर वो उनकी इच्छा से अगर ये चीज़ हो रही है दैट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर इफ़ सी इज़ नॉट रेडी फॉर इट तो उसकी इफ़ेक्ट हेल्थ के ऊपर एडवर्सली होती है. देयरफॉर मैनी वेज हैव बीन डिवाइज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी. तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है. दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फॉल इन अ नंबर ऑफ कैटेगरीज. उसको कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, okay, to avoid pregnancy. One category is the creation of a mechanical barrier so that sperm does not reach the egg. Okay, एक मैकेनिकल बैरियर जैसा बनाया जाता है जिसके कारण क्या होता है कि जो स्पर्म होता है यानी मेल जर्म सेल होता है वो एक तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो सकती. ओके, कॉन्डम ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग worn in the vagina can survive this purpose. ओके, ये एक तरीका है जिसके कारण कॉन्डम पेनिस पे या तो कवरिंग वॉन इन द वजाइना जिसके कारण भी उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है. ओके, नाउ another category of contraceptive acts by changing the hormonal balance of the body so that eggs are not released and fertilization cannot occur. ओके, दूसरी भी कॉन्ट्रासेप्टिव एक्टिविटी है, एक्ट है. ओके, जिसके कारण क्या होता है कि हार्मोनल बैलेंस चेंज होता है जिसके कारण जो एग होता है वो रिलीज़ नहीं हो पाता है, और एग रिलीज़ नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगी. दिस ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली एज पिल्स. ओके, एक तरह का ये मेडिसिन आती है जिसके थ्रू ये एग रिलीज नहीं होता है. ओके, हाउएवर सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंस दे कैन कॉज साइड इफेक्ट्स टू. ओके, तो ये पिल्स लेने से बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसकी साइड इफेक्ट भी होती है बॉडी के ऊपर. अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज द लूप और द कॉपर टी आर प्लेस्ड इन द यूटेरस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. इस तरह की भी कॉन्ट्रासेप्टिव एक्टिविटी है कि जिसमें लूप या तो कॉपर टी लगाया जाता है कहाँ पे, इन द यूटेरस, जिससे भी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है. अगेन दे कैन कॉज दिस साइड इफेक्ट्स ड्यू टू इरिटेशंस ऑफ द यूटेरस, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट जैसा होता है जिसको वहाँ पे फिट किया जाता है तो उसके कारण इरिटेशन भी हो सकता है. ओके, if the fallopian tube in the female is blocked, the egg will not be able to reach the uterus. क्योंकि जो ओवरी से जो एग डेवलप हुआ है या तो मैच्योर एग वहाँ से रिलीज हुआ है तो वो फैलोपियन ट्यूब में आके पास होके बाद में वो फर्टिलाइज होके यूटेरस में आता है, वॉर्म में.
लेकिन अगर फेलोपियन ट्यूब को अगर ब्लॉक कर दिया जाता है तो वहाँ से वो एग आगे आएगा नहीं। ओके, एग विल नॉट बी एबल टू रीच द यूटेरस, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ये भी एक प्रोसेस है। इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशंस विल नॉट टेक प्लेस। सर्जिकल मेथड्स कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स, क्योंकि इस तरह से फेलोपियन ट्यूब को यानी ट्यूब को ब्लॉक करना है तो उसके लिए सर्जरी ज़रूरी है। हो, इट मीन्स सर्जिकल मेथड्स कैन बी यूज्ड, ओके, टू block the fallopian tube. While surgical methods are safe in the long run, surgery itself can cause infections and other problems if not performed properly. अगर वो सर्जरी प्रॉपरली नहीं हुई है तो उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। ओके, लेकिन सर्जिकल मेथड सेफ है इन द लॉन्ग रन। सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। ओके, क्योंकि अगर मान लो कि अगर प्रेगनेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं एबॉर्शन, ओके, तो सर्जरी इन द फॉर्म ऑफ एबॉर्शन, इसमें क्या होता है कि रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर वहाँ पे फर्टिलाइज सेल आ गया, वहाँ पे वो डेवलप हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उसको निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द सर्जरी। ओके, this may be misused by people who do not want a particular child, as happens in illegal sex selective abortion of female fetuses। क्योंकि हमने देखा है कि अगर गर्ल चाइल्ड है, कुछ लोग स्पेशल पर्टिकुलर चाइल्ड को ही बॉर्न देना चाहते हैं। ओके, अगर वो उनकी इच्छा है उससे अलग है, ओके, तो उसको वो एबॉर्ट करवा के उसको निकाल देते हैं सर्जरी करवा के। दैट इज इलीगल सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन ऑफ फीमेल फर्टिसाइड्स। ओके, फॉर अ हेल्दी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन, क्योंकि हेल्दी सोसाइटी के लिए दोनों का, मेल का फीमेल का, दोनों का सेक्स रेशियो इक्वल होना चाहिए। मेल फीमेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन। बिकॉज ऑफ reckless female ferticides, child sex ratio is declined at an alarming rate in some sections of our society, although prenatal sex determinations has been prohibited by law। इसीलिए एडवांस में बच्चा बॉय है कि गर्ल है या ओके, वो आइडेंटिफाई करने का जो टेक्निक है, जिसको हम सोनोग्राफी भी बोल सकते हैं, ओके, तो गवर्नमेंट ने उसको बैन किया है। ओके, कोई इस तरह से बच्चे की सेक्स क्या है, मेल है कि फीमेल है, ये नहीं जान सकता। क्योंकि अगर पहले से ये चीज़ पता लगती है तो लोग क्या करते हैं, ओके, उसको एबॉर्ट करवा देते हैं। अगर उनका वांटेड बच्चा नहीं है तो उसको एबॉर्ट करवा देते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको प्रोहिबिट किया हुआ है बाय द लॉ। We have noted earlier that reproduction is the process by which organisms increase their populations. The rates of birth and death in a given populations will determine its size. And the size of the human population is a cause for concern for many people. This is because an expanding population makes it harder to improve everybody's standard of living. And however, if inequality in society is the main reason for poor standard of living for many people, the size of the populations is relatively unimportant. Okay students, so up to here our chapter number 8 is over. How do organisms reproduce? Okay, is there any query, any confusion related to this chapter or particular topic? You may contact to your respective subject teacher. Okay students, thank you, and complete the homework also.